Hi guys, in this video, basically we are going to learn that how to create your own linked list. So let's say in Java, there is a no linked list is there. यदि कोई linked list का क्लास ही नहीं है, तो आप कैसे आपका खुद का linked list लिखोगे? अब नॉर्मली वी नो दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, उसके लिए आपको थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया होना जरूरी है. और दिस बेसिकली इफ यू विल सी व्हाट आई कैन से, लेट मी शेयर विद इनटू नोटपैड आल्सो, वन ऑफ द नोटपैड हियर. तो लिंक लिस्ट एक समथिंग वी कैन कॉल एज जावा लिंक लिस्ट जो होते हैं, ये बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट डब्ल्यू लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट. करेक्ट. तो उसमें डब्ली लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में कैसे होगा कि आपके पास में हर एक नोड में, right, एक नोड इज नथिंग बट इज योर कंटेन्स योर लेफ्ट, राइट. तो लेफ्ट साइड का नोड को रिफर करेगा ये, राइट, लेफ्ट साइड एलिमेंट, राइट. और उस नोड में, करेक्ट, यदि राइट हम स्पेसिफाएंगे तो ये एक राइट साइड का एलिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, और मे बी इट विल बेसिकली पॉइंट टू राइट साइड. और एक नोड में जो होगा एक डेटा जिसमें हम उसका जो नोड का वैल्यू कैप्चर करें. करेक्ट. अब ये एक्चुअली यदि आप देखोगे तो ये इस तरीके से दिखाई देता है, बट यदि आपको देखना है कि हाउ वी कैन सी. पर्सनालिटी लानी है बदल घुस के घर को उनको हेल्प चाहिए आपकी पूछे पापा है सो डब्ल्यू लिंक लिस्ट, how it looks like, correct. So it, you will see doubly linked list, I guess you can see the image, it will be a little better for you to understand. So it will have like this, right, you will see this image, correct. So there will be this A, B, and C, these are the values. So it is pointing to a left, right, and the previous and the next. Here we are saying left and right, or you can say next and the previous and the next, correct. So previous mean the left side, and the next will be at the right side. So what will be the next like this? So what are the advantages into this doubly linked list? Advantages is that insertion and deletion is very faster. So why? Because if I wanted to add one more element here in between that B and C, I don't need to disturb A and D. I will just point here next and the previous for. So the B next will be the new node, and the previous of the C will be the new node which we are inserting it. So like this, that is a much better for insertion and deletion, correct? So this way basically, so this is representing to our node. In Java, how we will represent, we will create one class, something called as a node, right? तो नोड, अब ये जो नोड होगा, जो क्लास होगा, वो किस किस टाइप के वैल्यूज स्टोर कर सकता है. अब मे बी इट कैन बी ए स्ट्रिंग, मे बी इट कैन बी integer, maybe custom classes or whatever it is. So here we will use the type of a generic. So I have used the denotation is something called as an E. This E is nothing but representing, it could saying that it is the type of an item, means what we can call as the any kind of a data which is when we are creating that linked list at this time, we will specify what is the, is this a string, is this an integer, or any other custom class like customer.java or something like that. Correct. So the next, in this node also we have, there is a two more references. There is a same class reference we are giving next and the previous. Okay. And when we create that node, we are saying that item is like that. Correct. So we just creating using this node, which is basically initializing with the help of constructor. तो वेरी सिंपल व्हाट वी कैन से द क्लास. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है. एक कैन बी हैव वो क्लास हैविंग द सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स एज इटसेल्फ. यस. तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है, इट इज अ टाइप ऑफ द सेम क्लास टाइप इटसेल्फ, राइट. जैसे ये नोड का जो क्लास हमने बनाया है उसी टाइप का क्लास मैंने बनाया, right? If I will create one more type of
class here, let me tell you that how we can create this, right? अब in case node data, right? So you can create that, यदि let's say कि ये string type का होता, करेक्ट, तो यदि ये सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, डेटा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि प्राइवेट नोड डेटा, राइट, और इसको बोलेंगे हम प्रीवियस, राइट, हियर हम प्राइवेट नोड डेटा, इसको बोलेंगे हम नेक्स्ट। ये नेक्स्ट में कौन सा नोड होगा वो भी सेम टाइप का क्लास है, राइट। तो ये क्लास का स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब यदि इसी तरीके से, बट ये सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा यूज करेगा, बट यदि मुझे इसको जेनरिक बनाना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट एज अ टाइप ऑफ जेनरिक, और इसको हम यहाँ पर, और मुझे यदि इसे इनिशियलाइज करना है तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू, तो ये कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब ये जो नोड है या नोड डेटा है जो हमने बनाया है, इसको हम यूज करेंगे हमारे लिंक लिस्ट क्लास में। तो लिंक लिस्ट का जो क्लास है, इट इज अ टाइप ऑफ ई, सेम जो हमारा नोड का रहेगा। अभी मैंने इसको ट्रांजिएंट साइज हमने दिया है 0। अभी इसमें हम लेंगे एक हेड एंड एक हमने लिया है टेल। जो व्हाट विल द फर्स्ट हेड, मतलब राइट, जो इसका फर्स्ट हेड है उसको हम ले रहे हैं हेड एंड टेल, करेक्ट। तो जब भी हम उसको ऐड करेंगे, करेक्ट, तो अब ऐड में हम जब करेंगे तो हम देखेंगे यदि हेड नल है तो हम हेड में ये न्यू नोड असाइन कर देंगे, करेक्ट। और टेल में बेसिकली हमने हेड असाइन किया हुआ है, एंड वी आर सेइंग साइज प्लस प्लस, करेक्ट। तो साइज में क्या हो जाएगा, जो इनिशियल साइज है यहाँ पे 1 हो जाएगा, ओके। और रिटर्न ट्रू। एल्स में क्या होगा, राइट, एक टेम्परेरी नोड हम बनाएंगे, राइट, न्यू नोड, ओके। और ये जो टेम्परेरी नोड होगा उसके जो प्रीवियस में हम लोग क्या करेंगे, राइट, तो टेल इज इक्वल टू टेल नेक्स्ट और साइज प्लस प्लस। मतलब यदि अभी इसमें यदि साइज 0 है, यदि हेड भी नल है, तब ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जब, अब क्या होगा कि ये लॉजिक आप आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। मैंने यहाँ पे एक टेम्प नोड लिया है और उस टेम्प नोड के साथ में मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये लॉजिक आप ऐसा भी लिख सकते हो, समथिंग लाइक दैट, कि यू कैन असाइन हेड इज इक्वल टू योर न्यू नोड, ठीक है, राइट। हेड इज इक्वल टू वो न्यू नोड हो जाएगा, और हेड का जो नेक्स्ट होगा, राइट, इज इक्वल टू अ टेन, राइट। तो मीन्स अभी हमारे पास में दो ही नोड है, अभी टेल में तो नल होगा क्योंकि टेल तो हमारे पास में है नहीं अभी, राइट। अभी हमारे पास में, तो ये टेल की वैल्यू अभी नल है तो वो भी नल हो जाएगी। आप यहाँ पर ऐसा भी लॉजिक लिख सकते हो यदि आपको ये टेम्परेरी नोड यूज है, करेक्ट। और अदरवाइज ये आप यहाँ पे टेम्प का इसका जो टेम्प का जो नोड है टेल, अभी टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में जब हमारे पास में हेड इज ऑलरेडी, ये जो हेड है, राइट, वो नल नहीं है, मतलब आपके पास में ऑलरेडी इस लिस्ट में कुछ वैल्यूज है, तब ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। मेजरली हम टेल के साथ यूज करेंगे, करेक्ट। अब ये तो हुआ आपका ऐड का लॉजिक, करेक्ट। इस तरीके से अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मैं एक जावा क्लास मैंने बनाया हुआ है, लेट से,
तो ये जावा क्लास में माई लिंक लिस्ट, और इसको मैंने स्ट्रिंग टाइप का बनाया हुआ है और मैंने दो वैल्यू ऐड की हुई है। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, व्हाट इज द साइज ऑफ द लिस्ट हियर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट, अब यहाँ पर साइज ऑफ माई लिंक लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बस। तो ये जो नेम्स का लिस्ट है, ये नेम का लिस्ट बेसिकली डॉट साइज, ठीक है, क्लियर। अब हम इसको रन करें। तो आइडियली इसका साइज कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ पे देखो कि साइज आ गया है 2, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको अब मिल गया है ये 2 बेसिकली। अब यदि आपको इसको प्रोसेस करना है, आपको इसको इटरेट करना है, तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में आपको फिर फॉर लूप लगा के, या अभी इस पर्टिकुलर लिस्ट के ऊपर हम फॉर ईच यूज नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। क्योंकि फॉर ईच इज रेडीमेड फंक्शन प्रोवाइडेड फ्रॉम द जावा एपीआई। अभी इसको आपको आपके खुद का एक इटरेशन के लिए एक अलग लॉजिक लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पे इसको इंटरनली इटरेटर यूज करके प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो अभी ये हो गया ऐड का लॉजिक। इसी तरीके से यदि आपको दूसरे लॉजिक्स पे लिखना है, तो लेट्स से कि एक और है कंटेन्स। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये पर्टिकुलर नोड उसमें अवेलेबल है या नहीं, करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं बेसिकली वॉट एवर द डेटा, जो भी डेटा है, करेक्ट। अब डेटा जो भी है उसके कौन से नोड, किसी भी नोड में अवेलेबल है या नहीं, राइट है। तो हम क्या करेंगे, तो आइटम क्या है हमारे पास में, आइटम इज नथिंग बट योर वैल्यू, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि पहले तो हम हेड में चेक कर लेंगे कि हेड में का जो वैल्यू है, वो इस जो भी वैल्यू उसके अवेलेबल है तो ठीक है, ट्रू। अदरवाइज हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। तो पहले हम हेड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। तो अब हम इसको भी कंटेंट्स को चेक कर लेंगे, यदि वो मिल जाता है तो ट्रू, अदरवाइज वी विल मेक इट एज अ फॉल्स, ठीक है। अब वापस आप आओगे इसी में, तो क्या हो रहा है, लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि यहाँ पर हम यदि देखेंगे, सो फर्स्ट वी आर चेकिंग इन हेड नोड वैल्यू। हमने हेड नोड के वैल्यू से चेक किया, एल्स वी विल यूज। अब आप यहाँ पे वाइल लूप यूज कर सकते हो, फॉर लूप यूज कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। वाइल लूप, राइट, राइट, टू प्रोसेस नेक्स्ट नोड, राइट। तो अब नेक्स्ट नोड कैसा है, पहले हम हेड नोड पे पहले बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट नोड होगा वो हेड नोड होगा, सेकंड नोड पे जाएंगे, फिर सेकंड नोड का वैल्यू चेक करेंगे। तो हम टेम्प में क्या बोल रहे हैं, जैसे ही ये वैल्यू पे एग्जीक्यूट होगा टेम्प की वैल्यू सेकंड पे आ जाएगी। सेकंड नोड का आइटम के वैल्यू के साथ चेक करेंगे, यदि अवेलेबल है तो ट्रू, नहीं है तो क्या करेंगे, अगेन जो सेकंड नोड का नेक्स्ट होगा दैट इज अ टेम्प, सो इस थर्ड टाइम में टेम्प विल बी अ थर्ड नोड। तो थर्ड नोड के वैल्यू के साथ चेक करेंगे, यहाँ पे यदि मिला तो ट्रू, यदि नहीं मैच हुआ है तो अगेन टेम्प इज इक्वल टू फोर्थ नोड, तो फोर्थ नोड हो जाएगा। देन अगेन इट विल इटरेट लाइक दिस, यू कैन राइट दैट कंटेन्स। अब इसको यदि हमें चेक करना है तो हम क्या कर रहे हैं, लेट मी सी। तो हमने यहाँ पर इसको पहले साइज में देख लिया, अब हम देखेंगे बूलियन, राइट, इज अवेलेबल, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ कि नेम्स डॉट कंटेन्स, ठीक है। अब कंटेन्स में हमें क्या चेक करना है कि क्या इस लिस्ट में राजेश अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, लाइक दिस।
राइट, और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट वी आर डूइंग इट, सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इट, वी आर प्रिंटिंग रिजल्ट। प्लस यहाँ पर आप इसको यूज करिए। ठीक है, मैं इसको अगेन, चलो, ठीक है, तो इज अवेलेबल ट्रू आ गया है, मतलब वो अवेलेबल है। करेक्ट। तो हमने दो ऑपरेशन देख लिए, एक ऐड का ऑपरेशन देखा है, एक हमने कंटेंट्स का। देन यू कैन मेक इट एज अ डिलीट। तो अभी डिलीट में क्या होगा, राइट, जब भी वो नोड जहां पर भी मिलेगा, तो वो नोड को हमको रिमूव करना है, तो उसका जो प्रीवियस है, उसका जो नेक्स्ट होगा, राइट, उसके प्रीवियस का जो नेक्स्ट होगा वो डायरेक्टली इसके नेक्स्ट पे पॉइंट करेगा। करेक्ट है। सो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, वापस हम हमारे नेटलिस्ट में आ गए, और यहाँ पे रिमूव। अब हम क्या कर रहे हैं कि यदि हेड इज नॉट इक्वल इज इक्वल टू नल, और आइटम इज दिस, वी विल से एज अ, और यदि इसके इक्वल में नहीं है, वी विल से रिटर्न फॉल्स, राइट। और अदरवाइज व्हाट वी आर डूइंग इज टेम्प इज, अभी ये लॉजिक आप आपके हिसाब से भी लिख सकते हो, ये हमने हमारा लॉजिक लिखा हुआ है। करेक्ट। तो लेट्स से कि यदि आपको क्या करना है इन दैट सिनेरियो, तो मैं यहाँ पे एक नया लॉजिक बिल्ड कर देता हूँ। तो लेट्स से वी आर राइटिंग इस पर रिमूव। ठीक है, व्हाट वी आर सेइंग इज, एक नया लॉजिक हम डेवलप करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इफ, राइट, हम क्या कर रहे हैं, इफ हेड इज इक्वल टू नल, ठीक है, व्हाट वी विल से, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, रिटर्न, अभी मैं बाय डिफॉल्ट भी फॉल्स दूंगा। यदि हेड नल है, तो उस केस में हम यहाँ पर, मतलब अभी इसमें कोई एलिमेंट नहीं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जो भी हेड है, करेंगे, अभी ये हेड तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, राइट, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी द हेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट वी विल प्रिंट इट हियर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ हेड आइटम। करेक्ट, पहले हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इसको, हेड डॉट आइटम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले इसको हम रिमूव में पहले प्रिंट कर रहे हैं, अभी हम रिमूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम फिर से प्रोसेस करेंगे। तो अभी हमने चेक किया है, अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर नेम्स डॉट रिमूव, और मैं ये राजेश को यहाँ से रिमूव, करेक्ट है, लाइक दिस, राइट। तो अब जो वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए, तो वैल्यू ऑफ हेड आइटम इज जेम्स, तो ये जेम्स मिल गया हमें। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया है कि फर्स्ट नोड में जेम्स है, सेकंड नोड में राजेश है। करेक्ट, तो जेम्स जो हेड के नेक्स्ट नोड में राजेश है, राइट। तो जैसे ही हम ये जेम्स को रिमूव करेंगे, राइट, इफ यू विल रिमूव, रिमूव, तो होगा ये कि जो हेड का जो पर्टिकुलरली, यदि हेड में यदि हमें जेम्स मिल जाता है, राइट, तो हम क्या करेंगे, जो हेड का नेक्स्ट होगा वो हेड हो जाएगा। करेक्ट, नेक्स्ट इज हेड। ठीक है, लाइक दिस, क्लियर। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, राइट, लाइक दिस।
अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, लेट्स गो टू अ माइनिंग लिस्ट। अभी इसमें दो तीन चार चीजें हो सकती है अलग अलग तरीके से। अब हेड और टेल दोनों एक साथ में हो गए हैं, राइट। यदि ये हेड इज इक्वल टू नल तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर हमारे नीचे एल से, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि डॉट आइटम, राइट, इज नॉट इक्वल टू नल। हम नल भी चेक करेंगे, राइट। इट इज बेटर टू चेक नल ऑलवेज टू अवॉइड द नल पॉइंटर। फिर हम क्या करेंगे, हेड डॉट आइटम, राइट, डॉट इक्वल्स, राइट। अब यदि ये आपका ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, राइट, हेड में आ जाएगा यहाँ पर हेड डॉट, ठीक है। तो आपका हेड के नेक्स्ट में क्या हो गया है अभी आपके पास में, बेसिकली हेड के नेक्स्ट में आपके पास में आ गया है हेड, राइट। अब हमें क्या करना है मेजरली, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अब क्या होगा, अब यदि हेड का आइटम जो प्रिंट होगा दैट इज शुड बी है राजेश है, तो इस केस में अब आपको राजेश मिलना चाहिए। तो हम अगेन यहाँ पर आ रहे हैं कलेक्शन प्रोसेस में, राइट। यहाँ पे यू विल रन इज the value of head item is James. So still it is coming out to James. So we need to check it and we need to find out exactly कि अभी क्या प्रॉब्लम होगा। अच्छा सॉरी, तो हमने यहाँ पे राजेश को रिमूव किया है। अभी हम यहाँ एक्चुअली जेम्स को रिमूव करेंगे, हमें जेम्स को रिमूव करेंगे, राइट। तो वैल्यू ऑफ द हेड आइटम इज राजेश here, राइट। अब जब रिमूव करने के बाद में हम इसको वापस अभी देखेंगे, अभी भी साइज क्या हो रहा है आपका, 2 ही आएगा, तो हमें साइज माइनस माइनस भी करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही ये यहाँ पे रिमूव होगा हम बोलेंगे साइज माइनस माइनस, ठीक है। तो एक साइज कम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे फिर से रन ऐसा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम वापस से साइज प्रिंट करेंगे। अब साइज क्या होगा, दिस इज द वे यू कैन इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर इन जावा। यदि आपको रियल में डेटा स्ट्रक्चर सीखना है जावा के साथ में, तो यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग विद कस्टम क्लासेस। तो साइज ऑफ माई लिंक लिस्ट इज 1 नाउ। अब पहले क्या था, पहले 2 था, इज अवेलेबल ट्रू, फिर हमने एक आइटम रिमूव किया, अब 1। अब हम इसको थोड़ा सा और इनहांस करेंगे, और इनहांस करने के बाद में व्हाट वी डू, यहाँ पर एल सिप में फिर से हम आते हैं, मीन्स अब हेड भी नल नहीं है, और वो कह रहा है कि इट विल कैन बी फाइंड आउट इनटू अ वाई। तो हम टेम्प ले लेंगे, राइट। तो दैट टेम्प इज नथिंग बट ई इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है। और इस टेम्प में हम क्या कर लेंगे, टेम्प इज इक्वल टू, वी विल चेक दैट हेड डॉट नेक्स्ट, हम नेक्स्ट स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पर एल्स की जरूरत नहीं है, हम एल्स में लेंगे। टेम्प इज
नॉट इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर इफ लेंगे, और इफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक करेंगे, राइट, इफ टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब टेम्प नल तो नहीं है, पहली बात, राइट। सेकंड पॉइंट क्या करेंगे हम, राइट, यदि टेम्प नल है एंड टेम्प डॉट आइटम इज आल्सो नॉट इक्वल टू नल, यदि ये दोनों ही केस में होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू, एल्स। अब ये वाले एल्स में क्या करेंगे हम, मतलब जो आपका नेक्स्ट नोड है वो भी नल नहीं है और ये वाइल के अंदर चल रहा है, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल चेक दैट, राइट, इफ इसको एल्स इफ ले लेते हैं, तो एल्स इफ में क्या होगा, इफ टेम्प डॉट आइटम डॉट इक्वल्स, राइट, इज इक्वल टू ओबीजी, राइट, रिटर्न ट्रू, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि आपको नेक्स्ट नोड में यदि मिल जाता है तो ठीक है, एल्स, एल्स में क्या करेंगे हम, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, हम वापस नेक्स्ट नोड पे जाएंगे। ठीक है, हम्म, तो ये तब तक चलेगा, राइट, जब तक ये टेम्प यदि नल नहीं है तो ये चलते जाएगा, करेक्ट। यदि टेम्प नल होगा तो ये नहीं चलेगा और ये ब्रेक हो जाएगा, करेक्ट। यदि एक भी नेक्स्ट नोड यदि इसका होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब इस लॉजिक के साथ में हम अब फिर से टेस्ट करते हैं, we'll see क्या होता है। नाउ वी विल ऐड 3 more values here। इसके बाद में आई विल टेल यू हाउ यू कैन मेक इट एज अ थ्रेड सेट, राइट, 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 नेम्स डॉट ऐड, यहाँ पर हम क्या होगा, अभी ये लॉजिक को थोड़ा सा और रेक्टिफाई करना है, मैं भूल गया उसको। तो जैसे ही यहाँ पर आपका ये मिलेगा, करेक्ट, सॉरी अभी हम कंटेंट्स की बात कर रहे हैं, ओ माय गॉड, अभी तो सिर्फ मिला है, मतलब अभी हमने रिमूव नहीं किया है, करेक्ट। तो जैसे ही यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, यदि वो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है, राइट, तो हमें यहाँ पर थोड़ा और लॉजिक ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यदि वो मिल जाता है तो टेम्प का जो प्रीवियस है, राइट, का जो नेक्स्ट आइटम होगा इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, राइट, उसके प्रीवियस का जो नेक्स्ट होगा वो टेम्प का नेक्स्ट होगा, राइट, लाइक दिस। ओके, दिस वे
we can remove it, and here is also we will say size minus. ठीक है, अब हम इसको फिर से टेस्ट करते हैं। तो आई विल रिमूव समथिंग कॉल्ड एज अ रॉ। ठीक है, और रॉय को रिमूव करने के बाद में फिर हम इसको एक बार और चेक करेंगे क्या ये रॉय अवेलेबल है। contains. So people who are really preparing for some kind of a good product-based companies, or there are companies who are looking for a data structure algorithms, they need to basically work on these kind of problems, right? And it will be also looks like you can also take a similar kind of problems from the deep code and your hacking. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि is this available? Okay. Now, comments भी लिखेंगे is Roy राय अवेलेबल है या नहीं है, हमने रिमूव किया है उसके बाद भी विल सी। अब इसको हम फिर से टेस्ट करें। ओह, सो इट इज सेइंग दैट साइज ऑफ माय लिंक लिस्ट इज 4। तो रिमूव होने के बाद भी आई गेस इट इज नॉट मेकिंग व्हाट वी कैन कॉल इज रिमूव भी नहीं हो रही है। तो हमको थोड़ा सा लॉजिक इसको ट्यून करना पड़ेगा यहाँ पर। तो टेम्प में क्या हुआ है, हेड डॉट नेक्स्ट, राइट, यहाँ पर ये आएगा, देन वी विल सी टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, और ये टेम्प के इसमें तो यहाँ पर नहीं जा रहा है, इस वाले लूप में नहीं आ रहा है, इसमें आएगा यदि टेम्प डॉट आइटम्स इज इक्वल टू, तो मिल रहा है, तो ठीक है। तो टेम्प डॉट प्रीवियस, अच्छा यहाँ पर हमें एक और चीज करनी है। तो टेम्प डॉट प्रीवियस को हम अपने टेम्प के नेक्स्ट में लिखेंगे, और टेम्प डॉट नेक्स्ट के प्रीवियस को हम ले लेंगे। तो उसमें किसको लेंगे, टेम्प के प्रीवियस। लेट्स सी क्या मतलब, देन वी विल सी। नहीं होता फिर हम डिबग करेंगे, अभी भी ये नहीं हो रहा। नाउ लेट्स सी क्या है, लेट्स सी। तो इसको बेसिकली यू कैन डिबग इट, ठीक है। अब डिबग करने के लिए क्या करना है, ये ऐसे मैंने डिबगर पॉइंट लगाया है, और आई विल रन इनटू अ डिबगर, रन एज अ जावा, नॉट रन एज एक्चुअली यू कैन डिबग एज अ जावा। तो जब भी आपका कोड परफॉर्म नहीं कर रहा है यू कैन डिबग स्विच। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि इस टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल,
ओ, तो ये यहाँ पे इसके अंदर ये वाले इफ एल्स में नहीं जाते। ठीक है, तो ये इस यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ पर ये वाले इफ की जरूरत नहीं है एग्रीगेशन, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ टेम्प नॉट इक्वल टू नन चेक कर रहे हैं। तो मैं उसको देख लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ हमको ये बार चेक करना है कि टेम्प डॉट आइटम इज नॉट इक्वल टू नन एंड, क्योंकि नल भी हमें चेक करना है। फिर से हम इसको डिबग करेंगे। पहले मैं एक बार रन करूँ। Now you see size of the linked list 3 and the row is available, it's false. तो I guess अब ये लॉजिक वर्क कर रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। लाइक दिस यू गैस कैन आल्सो ट्राई। अभी हमने रॉय के लिए ट्राई किया है, मैंने ये लॉजिक लिखा था, इसको हम आप चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर, आपको जो लॉजिक लिखना है यू कैन ट्राई, यू कैन चेंज इट। तो मैंने आपको 3 ऑपरेशन बताए। अभी यही पर्टिकुलर, अभी इसमें आपको बाकी भी चैलेंज आएंगे जब आप उसको कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ ट्राई करेंगे। तो कस्टम ऑब्जेक्ट्स में इक्वल्स का इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा, हैश कोड का इक्वल इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा। राइट, तो आपको ओवरराइड करना पड़ेगा यहाँ पर इक्वल्स एंड हैश कोड। करेक्ट। तो लेट्स से इफ आई एम राइटिंग इट हियर कस्टमर डॉट जावा, राइट। तो यदि कस्टमर डॉट जावा में यहाँ पे इक्वल्स और हैश कोड भी आपको शायद ओवरराइड करना पड़ेगा, अदरवाइज हाउ यूर लिंक लिस्ट विल बी एबल टू फाइंड आउट कि कौन सा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं। राइट, तो व्हाट यू विल से, बेसिकली लेट्स से प्राइवेट इंट आईडी, राइट, प्राइवेट स्ट्रिंग में 2 ही पैरामीटर ले लेना। ठीक है, तो यदि इसमें इक्वल्स यदि आपको करना है तो बूलियन, राइट, नॉट ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो इन केस ऑफ इफ, राइट, दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू ई डॉट आईडी। अभी ई के लिए आपको एक और कस्टम ऑब्जेक्ट चाहिए, बेसिकली कस्टम सी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको कस्टमर ही कर लो तो बेटर, तो और भी बेटर होगी। सो ई डॉट आईडी, राइट, यहाँ पर एंड, करेक्ट, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू डॉट इक्वल्स ई डॉट नेम। ठीक है, यदि ऐसा होगा तो रिटर्न ट्रू, राइट, एल्स रिटर्न फॉल्स। राइट, अभी यहाँ पर भी आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, राइट, ई डॉट, राइट, यहाँ पर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा इसके ऊपर, राइट। सो देयर हैज टू बी अ वन मोर इफ वी कैन टेक इट अप एज अ, अब ये इफ क्यों लिख रहा हूँ मैं वो भी आपको बता देता हूँ, बिकॉज वी वांटेड टू चेक सम नल चेक्स। नल आपको टेक केयर करना बहुत जरूरी है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर मे बी इफ यू कैन पास अ नल, सो नल पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पर। इफ ई इज नॉट इक्वल टू नल then only we will pass, and what we will say,
E dot name is not equal to, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, else, अब क्या हो गया, ये if खत्म हो गया, रिटर्न बाय डिफॉल्ट हम false रिटर्न करें, ठीक है, लाइक दिस इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये इसके अंदर जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया कि इक्वल्स में आपको पता चल गया कि जो भी इक्वल्स जब यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब हम कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ इसको ट्राई करेंगे, सेम लिस्ट को, तो मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, कलेक्शन प्रोसेसर, ठीक है, अब स्टडी, अब हम क्या कर रहे हैं, वही सेम माई लिंक लिस्ट क्लास, इसको हम हमारे कलेक्शन ऑपरेशंस में लेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ कस्टमर, राइट, फर्स्ट लिस्ट, ठीक है, न्यू, ये किस टाइप का है, कस्टमर। अब यदि इसको आपको आगे प्रोसेस करना है तो ठीक है, ठीक। अब हमें ये कस्टमर को इनिशियलाइज भी करना है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको अभी के लिए क्या करता हूँ, कस्टमर इंट आईडी फ्रॉम स्ट्रिंग मेल, तो कंस्ट्रक्टर से हम इनिशियलाइज करेंगे इसको, और दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, दिस डॉट नेम is equal to name, ठीक है। And then also what you need to do, you need to write a segregators, so public, अब क्यों मैं यहाँ पर इस तरीके से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने पहले भी इम्यूटेबल क्लासेस, गुड डिजाइन के लिए वीडियोस बनाए हुए, यू कैन वॉच इट एंड देन यू कैन सी, एंड यू कैन आल्सो प्रोवाइड अ कमेंट कि why we need to use the private elements, why we should initialize to a constructor, and why we are using the public, ठीक है। This is basically is an assignment, right? Written public string, यहाँ पर भी हम, ठीक है। Now again come to your collection operations, or you will add this in list and see how it is working with you. और पहले हमें कस्टमर के ऑब्जेक्ट यूज करने, कस्टमर C1 is equal to new customer, अब हमें यहाँ पे पास करना है वन एज एन आईडी, नेम इज लेट्स से जेम्स, सेकंड, now you will get an idea why we need to use a hash code and equals. You also need to check that equals and hash code and provide the comments. What is the purpose of hash code and equals? And do we also need a hash code also in this scenario, right? Or for this linked list, we don't need that hash code implementation and there is no requirement for hash code, correct?
So like this. See. So this is the way you guys, this is an assignment and you guys can provide it. You will find out exactly why we are requirement for an hash code, and it's one of the most important question for an interview when we are talking about hash code and we'll see in the section. This particular video is majorly people who already know the basic concept of list, set, and mix. Correct. So here we are saying the list size. Correct. So you can also write here, we'll say dot size. So let's run it. Customer.java हमने सेव किया है. Now linked list again, what we are doing it, sorry. Finally, we are able to add that size. Now let's see, will it be able to do it that because this remove and other operations also, can we do it? So we have created a very generic list here, right? And dot contains C2. ठीक है, तो C2 contains कर रहा है या नहीं कर रहा है? True, it is working, right? Our equals method is working very fine for customer dot equals. Correct? Now, one more time, we will say remove. तो remove तीन operations हम कर रहे हैं. इसके बाद में you will add some more operations and you can perform some other things. So just like your linked list, there are many other operations you guys can add and some more operation as an assignment. अब क्या करना है? Basically, we need to do first list of remove C2 और इसके बाद में हम उसको एक बार फिर से चेक करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं. ठीक है. Now I will do it. I will run it. मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ से. Oh my God. अब ये कहीं पे फट गया है, right? So somehow we cannot assign a field previous because temp dot next is null. Right? So temp dot next is null. यहाँ पर already we have to take care. There are some of the things here. Right? So this is what we can call as अभी इसमें दो ही अब एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये किस लाइन पे फट गया है. There is some challenges is line number 77 क्योंकि जो नेक्स्ट है वो ऑलरेडी नल है. करेक्ट. जो टेम्प डॉट नेक्स्ट का जो प्रीवियस है वो नल हो गया है. राइट. अभी क्योंकि यदि यहाँ पर हमें चेक करना है if temp dot next is not equal to okay, let's run it now again. See what is happening here. अभी बराबर चल रहा है. तो इस तरीके से आपको इसलिए दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग टू हैंडल अ नल पॉइंटर एज मच एज पॉसिबल. और यही रीजन है कि आपको ये नल पॉइंटर अब यदि मैं यहाँ पे नल भी पास कर दूंगा, कहाँ पे नल पास करना है मुझे, राइट? ये जी ये कंटेंस में यहाँ पर मैं नल पास कर देता हूँ. करेक्ट. तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल करेगा और देयर विल नॉट बी एनी सच प्रॉब्लम. राइट. तो भी कौन सा है. करेक्ट. So these are the way basically you need to create some of that handle the null pointer exceptions, handle the typical exceptions in debug, and many such things we can learn it. Right.
I hope you enjoy this video, and if you really like, you can share it, and you can provide some more topics or information in the videos for especially for Java.